I went through a lot of depression. सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन था मेरे अंदर. I reached a stage where I couldn't move my right hand at all. You know, if you try and think कि reason क्या है इसका, ये क्यों हुआ होगा, there will not be a reason. क्योंकि उस वक्त suddenly मेरे पास कुछ काम नहीं था, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था. जब वो experience आ रहा है, we are able to detach and see that I am going through that pain. And then you're working on it. This is the power we need. तो डिसीजन मेकिंग जो आप बोल रहे हैं ना, शक्ति जो पावर है, is a very important, very powerful thing which has many repercussions. Time does not heal. You have to heal yourself. चोट भी हमारी created है, ठीक भी हम ही करेंगे. You entered films with a super bang, you know, with your movie, because you cannot not talk about Maine Pyar Kiya. I think a very sweet scene was there where the mother-in-law comes and asks Suman कि मेरे पगले प्रेम की सुमन बनोगी. While that was happening, मेरी जाती जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था. A very warm welcome to another edition of our Think Right podcast. And with us, we have here today a very special guest, a daughter of a royal family who became the sweetheart of the nation, you know, through the Maine Pyar Kiya, if you remember that, someone who says, Dosti mein no sorry, no thank you. Really a person who became the heartthrob of the nation. At one point, Bhagyashree was like talked about everywhere. And today we have her here with us. So very warm welcome. Wonderful to have you Thank here you with so us much. on this Thank you. podcast. And of course, you know, to take us through this journey of Think Right and how do we really, you know, influence and inspire millions of people along with you on this podcast. Very warm welcome to our spiritual guru, I would like to call Sister Shivani. Wonderful to have you here, Bhagyashree. And, you know, you are... I still remember because those were, you know, the days when you entered films with a super bang, you know, with your movie and how things really, you know, happened. You know, take us a little bit through your journey, your early days. You know, you come from a privileged background and family and then to films. You know, how did that journey happen and what did it do to you? Well, first of all, thank you so much for having me here, Om Shanti Om Shivani Ben. Shanti. It's an absolute pleasure being here, and Om Shanti to all you viewers here. Well, the journey has been written about and spoken about way too much, but I think what we need to affirm and re-understand over here, that one doesn't plan success. Success is something that happens. I mean, somewhere the stars align, somewhere the universe blesses you and success happens. So you are but a tiny spot in how it actually transpires to be. If you understand that, you don't allow success to go into your head. You actually think that you're lucky to be part of that universe who's taking so many people ahead. And that's what I've always believed in. And especially a thing like making films. You know, someone who says that I was the reason for a film's success, I think is taking far too much credit than is due to them. Because there are so many people that are invested in making the project. So it is the hard work, the aspiration, the positive thoughts, the universe, the stars, and lots of blessings from the Lord God above that takes the film to become a final success. And we cannot forget what the viewers, you know, it's their blessings that make us who we are. Yeah. So, having said that, I don't think it was difficult for me to handle the success that happened because I had never, ever given it a thought. And films came easily, naturally? How did you get into I films? had not really aspired to become a Right. film star. I was studying. I wanted to go abroad for my education. And Suraj ji happened to see me at a function.
and his parents and my parents know each other. And so one fine day they came home and started discussing it. I was actually very averse because I wanted to continue my education. So I had a long list of things that I would not do. I also said that मुझे पहले कॉलेज में जाना है, पहले पढ़ाई करनी है, तो मैं पहले कॉलेज जाऊंगी क्योंकि सवेरे का कॉलेज था, उसके बाद मैं शूट के सेट पे पहुंच सकती हूँ. तो उन्होंने हाँ कह दिया, तो फिर हाँ हो It गई. worked out. No, but I think, that's what, some things just happen in a person's life. But जी. what you said, when you get all that love, admiration, how does one really, like what she said, right? You just treat it as like a little sport, something happening. Not most people think like that. But what does it take? Why and how does that happen? बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि शी वॉज नॉट लुकिंग फॉर इट, और कोई मेहनत भी नहीं की है उसके लिए, है ना. वो अपने आप आया है. तो एक आपकी इच्छा नहीं थी, आपका डिजायर नहीं था वो. दूसरा, आपने उसके साथ कुछ मेहनत नहीं की थी, तो वो सिर्फ एक गिफ्ट की तरह आता है. लाइक कोई आया और आपको एक गिफ्ट देके चला गया, आप गिफ्ट के लिए ग्रैटिट्यूड रखते हैं, धन्यवाद है बस. पर उसको एक गिफ्ट की तरह ही ट्रीट किया हुआ है और ना उसको अपनी आइडेंटिटी बनाया. तो 3 चीजें हो गई, ना इच्छा, ना मेहनत. ऑफ कोर्स मिलने के बाद तो मेहनत की होगी उस पे, बट मेहनत टू बिकम दैट, टू रीच दैट, वो वाली मेहनत नहीं हुई. एंड फिर उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाया, तो फ्लो करना बहुत इजी रहा. एंड देन at the peak of your career, then you walk away to be with family and with love and all of that. And so that also came in the similar manner. क्योंकि मैं सोचती थी कि इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग. आपको जिंदगी में क्या चाहिए, ये आई थिंक हर किसी को समझना चाहिए कि व्हाट इज इट दैट विल मेक देम हैप्पी. सक्सेस, वर्क, फैमिली, ट्रैवल, किससे आपको खुशी मिलती है या एक लंबे अरसे तक आप खुश रह सकते हो वो चीज आपकी जिंदगी में रहने से. अगर वो इंसान समझ पाए, सो इट बिकम्स इजी टू बैलेंस थिंग्स. तो मुझे पता था कि फैमिली बॉन्डिंग, हैविंग पीपल अराउंड मी, ये मेरी जिंदगी में ज्यादा अहमियत थी. सो आई थिंक ऑल्सो आई वॉज वेरी यंग. मैं बस 19 साल की थी. तो टू मैनेज, आजकल करियर्स संभालते सब लोग संभालते हैं, सारी औरतें संभालती, आज मैं भी संभाल रही हूँ. लेकिन उस वक्त जब आप 19 साल के हो तो बहुत छोटे थे, और वो जो बैलेंस होता है वो नहीं कर पाते. तो उस वक्त आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. और मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरे पति, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, ये सारी चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट थी. सो फिल्म तो एक तरफ बहुत खुश थी मैं कि लोगों ने मेरा काम पसंद किया. बहुत सारी फिल्में आ भी रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अभिमन्यु जस्ट हुआ था. शादी का पहला साल था. बहुत सारी चीजें जो एक लड़की जब एक नए घर में जाती है तब संभालनी भी पड़ती है, समझने भी पड़ती है, एडजस्टमेंट भी होता है. तो मैं उस दौर से गुजर रही थी. तो मैंने सोचा अगर मैं ये कर लूं तो मैं वो सारी चीजें नहीं कर पाऊंगी. सो आई मेड अ चॉइस. और मैंने जिंदगी में हमेशा ये सोचा है कि व्हेन यू मेक अ डिसीजन, यू शुड बिलीव दैट इट्स अ राइट डिसीजन एट दैट टाइम. आप जब आगे जाते हो तो मे बी यू लुक बैक एंड से ओ दैट वाज रॉन्ग, पर वो वहां जाकर आप सोचते हो. जब आप कर रहे हो, इफ दैट्स अ राइट डिसीजन, इट इज द राइट डिसीजन, बिकॉज यू रीच क्रॉस रोड्स इन लाइफ हर वक्त. जैसे आप कहीं चलने भी जाते हो तो दोहरा तो हर मुकाम पे आती है जिंदगी की. इफ यू लुक बैक देन यू आर जस्ट वॉकिंग अराउंड इन सर्कल्स. अगर कहीं आगे पहुंचना है जिंदगी में तो आगे देख के ही चलना पड़ता है. उस वक्त वो डिसीजन राइट था, फाइन, मूव अहेड, आगे कुछ और आएगा. सो इट्स ऑल अबाउट
I think not looking back. Hmm. Just No. moving forward with positivity कि ये मेरे लिए सही है. नहीं, आजकल युवा शक्ति, if you see young people वो हमेशा सोचते हैं, is this right for me? सही है. How does one know that this is the right decision? हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया होगा डिसाइड करने के लिए दिस इज माय राइट डिसीजन. लाइक उनके लिए डिसीजन का क्राइटेरिया था प्रायोरिटी. सो इमेजिन, पुट योरसेल्फ इन दैट प्लेस कि सडनली आप कोई नहीं थे और सडनली बच्चा बच्चा आपको जानता है एंड यू डन ग्रेट वर्क, तो आपको इतना प्यार भी मिल रहा है. सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है. अप्रिसिएशन एक अलग चीज होती है और जी, प्यार एक जी. अलग चीज होता है. तो इनको सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं मिली थी, प्यार भी मिला था. And I think she came across a very sweet, innocent girl. I remember we were all in school that time. तो वो बिल्कुल वो जो एक वो हमने simple शायद ये pictures, I don't know when was 10th or 12th standard we were. I remember we were in that age. both in Pune. Yeah, yes, so वो exactly. वाला जो था, so she got a lot of love also because people were not looking just like an actress, like हमारी बेटी जैसी है, हमारी बहन जैसी, but very family oriented. जब आपके पास suddenly सब कुछ है, फिर आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, दैट ऑल्सो रिक्वायर्स पावर. ये पावर, अगेन दैट पावर जो है ना, दिस रिफ्लेक्ट्स द पर्सनालिटी. कि आपने एक डिसीजन के अंदर सब कुछ जो आपको एक गिफ्ट की तरह आया था, आपने वो गिफ्ट को साइड पे रख दिया, छोड़ा नहीं है, साइड पर रख दिया कि अभी मेरे पास एक और गिफ्ट आया है और इन दोनों गिफ्ट्स के बीच में से ये गिफ्ट मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बट दैट रिफ्लेक्ट्स हर पर्सनालिटी. और इसीलिए क्योंकि इच्छा नहीं थी, गिफ्ट की तरह आया था, लेकिन प्रायोरिटाइजिंग राइट थी, तो गिफ्ट को साइड पर भी रख सकते थे. एंड दिस लाइन नीड्स टू बी अंडरलाइंड. हर समय हम जो डिसीजन लेते हैं वो उस समय हमारे लिए राइट होता है. जरूरी नहीं है हमें जीवन भर उस डिसीजन के साथ रहना है. हो सकता है हम कुछ सालों के बाद डिसीजन भी चेंज करेंगे, फिर लोग कहेंगे अच्छा पहले तो आपने ये किया, अब आप ये कर रहे हो, तो तब के लिए ये डिसीजन राइट था, अब हम अपना डिसीजन चेंज कर रहे हैं. और कई बार हम जब वापस रिफ्लेक्ट करते हैं हमें कुछ डिसीजन राइट नहीं भी लगते, बट दैट इज ऑल्सो फाइन ना. उस समय मेरी जो प्रायोरिटी थी, मेरी जितनी समझ थी, हमारी डिसीजन. सो व्हाई पीपल फियर टेकिंग डिसीजंस. लोगों को डिसीजन लेने से डर लगता है कि मेरे से कोई गलत डिसीजन ना हो जाए. आप गलत नहीं ले रहे हैं, आप उस समय अपनी समझ, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हैं. वो डिसीजन कल आप चेंज कर सकते हैं. इतना डरना नहीं चाहिए डिसीजन लेने के लिए. आई थिंक इट्स ऑल्सो लर्निंग. लर्न आप है, आप सीखते हैं. आप सीखते हो, अगर गलत भी हो तो वो गलती से आप सीखते हो. सो आई थिंक when one looks back at mistakes या गलत decisions या कोई चीज जो आपकी जिंदगी में सही नहीं हुई, शायद आपके हाथ में नहीं था, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, that person teaches you शायद to be more stronger, to be better at what you're doing. पर हमेशा criticism को I think सीख जैसे लेनी चाहिए. कोई गलत चीज होती है तो उसको ये एक सावधानी या एक चेतावनी जैसे लेनी चाहिए कि यू रिमेम्बर नॉट टू डू द सेम थिंग अगेन. जैसे बच्चा गर्म दूध को हाथ लगाता है और अगर जल जाए उंगली तो वो वापस नहीं करता, वो संभाल लेता है. तो ये सारी चीजें जिंदगी हमें सिखाती है. जिंदगी में वही होता है. लाइफ इज अ लर्निंग, नो. तो हम सीख रहे हैं, तो डिसीजन लेने से डरना नहीं चाहिए. तो आजकल दैट्स व्हाट वी हियर लॉट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज वो फियर आ गया है कि अगर मैंने ये डिसीजन ली तो ऐसे होगा वैसे होगा. तो इधर लोग डिसीजन नहीं लेते हैं या इन दैट स्टेट ऑफ माइंड यू लैंड अप टेकिंग डिसीजंस दैट आर maybe wrong. एक और चीज भी करते हैं, वो दूसरों को कहते हैं आप मेरे लिए डिसीजन ले लो. वो भी है. And so it becomes easier to blame the other person. तो उसमें ब्लेम गेम भी आ जाता है, and I think लेकिन आपकी अपनी पावर भी तो नहीं बढ़ेगी ना. इवन अगर आप चलो ब्लेम गेम नहीं भी करते हो, सपोज somebody says okay I won't blame because we meet often people, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, आप बताओ नहीं हमें नहीं, आपको करना है, नहीं आप बता दो, हम नहीं बता सकते, हम नहीं they don't want that pressure. वो मेहनत नहीं करनी है डिसीजन की, फियर है, बट हमें करना है, भले हम गिरे, हमें फिर उठना है, फिर चलना है ना, फिर से डिसीजन लेना है, फिर से डिसीजन लेना है, करते करते, क्योंकि डिसीजन मेकिंग भी एक शक्ति है. 8 पावर्स होती है आत्मा से, उसमें एक शक्ति है निर्णय लेने की शक्ति.
तो वो निर्णय लेने की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे अंदर होनी चाहिए। तो उसको अगर नहीं भी है ना, उसको कल्टीवेट करें, लें, गलती करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन डिसीजन लेने की शक्ति को कल्टीवेट करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपका हर डिसीजन आपका कर्मा है और आपके कर्मा का परिणाम आपके पास आएगा। कोई और अगर आपका डिसीजन ले लिया तो आपका भाग्य बदल जाएगा। खुद लीजिए, उस कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और ब्लेम गेम तो बहुत सटल खेला ही जाता है। इन्होंने बोला ना तो मैंने ऐसा किया, अब देखो कैसा हुआ। So, एक डिसीजन लेना किसी से पूछे नहीं, एंड दूसरा कोई आपसे पूछे तो आप किसी और के लिए डिसीजन लेना नहीं। दैट आल्सो मेक्स अस फील वेरी पावरफुल। उन्होंने मुझे आके पूछा कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप किसी को गाइड कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो। डिसीजन उस आत्मा का अपना होना चाहिए, क्योंकि वो उसका कर्म डिसीजन। So ये personal, on the professional side also, जहाँ teams work together and you know sometimes someone takes a decision, but उसके कारण बाकी लोगों को भी इतना impact होता है. See, other power of decision, your decision is also affecting so many others. When there's a team, definitely. Anywhere, even in otherwise, say I make a decision. We may not be conscious about it, but it affects बहुत लोगों को. तो decision making जो आप बोल रहे हैं ना, शक्ति जो power है, is a very important, very powerful thing which has many repercussions, which at some point, you know, like you said, you look back and you say, my destiny or my thing was shaped by that, right? And your Bhagyashri, so Bhagya is you know, like you it's in your name, right? But लेकिन जब खुद डिसीजन आपने लिया होता है ना, तो नॉट नेसेसरी ऑल डिसीजंस विल बी राइट, बट क्योंकि वो आपने डिसीजन लिया था, आपके पास उस डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस फेस करने की शक्ति उसी दिन आ जाती है जिस दिन आपने निर्णय शक्ति का यूज किया। सो दैट इंक्रीजेस योर पावर आल्सो। मैं निर्णय नहीं लेती, किसी और को बोलती हूँ, फिर जब वो कॉन्सिक्वेंस आता है, then I don't take the responsibility to face the consequence, because even अगर मैंने शब्दों में नहीं बोला, मैं मन में तो सामने वाले को ब्लेम करती हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा था करने के लिए। तो दोनों ways, it is us, but you know, you but still दोनों will ways pass we it. lose power. Especially, I think the younger generation is going through this. Yes. They are not being able to take decisions effectively. और या तो माँ बाप को या अपने टीचर्स को या अपने पियर्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में, नहीं उन्होंने बोला इसलिए किया। तो आई जस्ट फील कि जो लॉस्ट होते हैं ना, वो उस कारण होते हैं क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि कॉन्सिक्वेंस बेयर करने की क्षमता होनी चाहिए हर किसी इंसान में। आप जो डिसीजन होते हो, व्हेन यू आर रेडी टू इनटेक द फ्रूट्स, अच्छाई चीज हमें चाहिए और उससे कुछ बुरा होता है तो हमारा नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है। सही बात है। we have to take the brickbats with the flowers. And then in your life, as you went on, I'm sure you went through different phases which were low and high, and how did you deal with those phases in life? Especially there was one particular phase, right? When you Yes, I think the most important phase in my life, because for me priority was my family. और हर किसी के साथ अलग अलग प्रायोरिटीज होती है। मेरे लिए मेरी फैमिली प्रायोरिटी थी, मेरे बच्चे प्रायोरिटी थे, तो मेरी पूरी जिंदगी मैंने उनके इर्द गिर्द घुमाई थी। जो मैं डिसीजंस लेती थी उनको नजर में रखते हुए लेती थी। कुछ करना हो, कहीं जाना हो, मेरी खुद की जिंदगी जीनी हो, तो सब वाज आफ्टर द चिल्ड्रन की ये उसके लिए ये करना है, उसके लिए ये करना है, और फिर मैं करूंगी अपने लिए। सो हैविंग सेड दैट, उन्होंने तो नहीं मांगा था, मैंने किया था क्योंकि मुझे लगता था ये एक माँ का कर्तव्य है, ये एक माँ की इच्छा है, माँ का प्यार है, ये सारी इमोशंस थी उसमें घुले हुए। लेकिन अगर मैं उनसे कुछ मांगती कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुम मुझे कुछ दो, तो ये गलत बात होती। तो आई चोज टू बी द विंड बीनीथ देयर विंग्स, और मैंने कहा उड़ जाओ जिस डायरेक्शन में आपको उड़ना है। पर उसमें क्या हुआ कि मुझे एक अकेलापन महसूस हुआ, क्योंकि उस वक्त सडनली मेरे पास कुछ काम नहीं था, क्योंकि बच्चों के साथ तो बहुत वक्त गुजर जाता है, और उस वक्त काम नहीं था,
कुछ करने का नहीं था, घर अपने आप चल रहा था, एक सिस्टम बैठा हुआ था, तो ये भी नहीं था कि भाई घर को संभालना है, कुछ करना है. My husband was doing very well in his business, so he was traveling. तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, ऐसे मुझे लग रहा था उस वक्त. और मैं आज बोल सकती हूँ कि मुझे लग रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन था मेरे अंदर. बहुत सारी किताबें पढ़ी, लोगों से जो कुछ थोड़ी बहुत बात हो सकती थी करती थी, लेकिन डरती थी क्योंकि सब लोग बोलते थे अरे ये तो सुपरस्टार है, इसको क्या तकलीफ है. सो यू डोंट ले आउट योर हार्ट इन फ्रंट ऑफ एनीवन. आप सबको अपना दुख, अपनी चिंताएं, अपने विचार नहीं बता सकते. तो एक बहुत मेजर्ड चीज आप बता सकते हो. तो मैं अब समझ में आता है उस वक्त डिप्रेशन हुआ था, उस वक्त पता ही नहीं था क्या है. तो मैं अपने आप को कहती थी कि उन लोगों से मिलो, उन लोगों की तरफ देखो जिनके पास कुछ भी नहीं है. आप वहां पर जाओ, उनसे मिलो, तो आपको एक एहसास होगा कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ है, इससे आपको खुशी मिलनी चाहिए. सो आई सर्च फॉर माई हैप्पीनेस बाय गोइंग ओवर देयर. मदर टेरेसा का एक बहुत बड़ा आश्रम है यहाँ पर, जहाँ पर नॉर्मल बच्चे नहीं, kids that have been left behind or aborted beforehand. तो वो नॉर्मल बच्चे नहीं थे. कोई एक मांस का लोधा था, कोई बात नहीं कर सकता था, किसी का एक हाथ था, कोई अपंग था. आई वेंट ओवर देयर. मैंने बहुत समय वहां पर गुजारा. पर मैं जब वापस आई तब मुझे खुशी नहीं थी, मुझे और दर्द हुआ और दुख हुआ, ये सोचकर कि मेरे पास इतना सब कुछ है, उनके पास कुछ नहीं है, तो मैं अपनी जिंदगी में खुश कैसे रह सकती हूँ. I'm not worth this beautiful clothes that I'm wearing, or the kind of dining table that or the food that I'm eating. मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया है to deserve this? और उन बच्चों के पास तो कुछ भी नहीं है, ना माँ बाप है, ना कोई प्यार करने वाला. I went through a lot of depression. And that's when Shivani Ben came into my life. So I went and talked to her. I said, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि मैं जब घर पे रहती हूँ तो मैं और डिप्रेस होती हूँ. जब मेरे पति आते हैं और कहते हैं कि मैं अभी आपके साथ समय स्पेंड करना चाहता हूँ, या कहीं बाहर जाना चाहते हैं, या दोस्तों से मिलना चाहते हैं, मैं कुछ भी नहीं करना चाहती. Because I was locked in that. And I didn't know how to get out of that. So that's the time where she helped me. Now she'll tell you how she helped me. क्या हुआ था फिर उसके बाद? आपने ये कहा था कि भगवान किसी व्यक्ति को एक पोजीशन इसलिए देता है क्योंकि उसने जीवन में कुछ चीजें की थी जो उनका कर्म था, जो आज वो उस कर्मा का भुगत रहे. That they are getting the pleasures out of life because they have done good. Instead of feeling sad and depressed about that, you deserve that. That is why. So you should be able to enjoy what you have. और अगर आपका दायित्व ये है कि आप आपके परिवार को संभालो, पति को संभालो, या उनके साथ बाहर जाओ, या enjoy these pleasures, ये आपका दायित्व भी है. अगर आप वो नहीं कर पाते तो आप कहीं wrong कर्मा कर रहे हो. So you should be able to enjoy things also in your life. When I started thinking about it, I said कि अगर मैं ना खुश होके कि आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट, और फिर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ या मदद कर रही हूँ, इट्स नॉट रीचिंग देम पॉजिटिवली. मैं ये सोचूं कि मैं इस पोजीशन में हूँ, मैं बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ जहाँ पर मैं लोगों की जिंदगी और अपलिफ्ट कर सकती हूँ, और फिर मैं ये थॉट प्रोसेस में उनका जीवन अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, देन आई एम स्प्रेडिंग दैट पॉजिटिविटी. So that
that was a actually big helped shift. me. Yeah. That just and helped. someone like you. It's just the thought process. No, absolutely. So when this is of course one angle to what you said, but it's also like when you see so much pain around you Yes. or what you experience, it actually drove you, what you said, deeper into Yes, and depression, right? ऐसा नहीं है Because कि मैं वहां पर हाँ, जाके उनकी मदद नहीं हाँ, करती थी. मैं एक्चुअली बैठ के एक एक बच्चे को हेल्प हाँ, करती थी, उनके साथ बहुत वक्त स्पेंड हाँ, करती थी. बट दैट डिड नॉट गिव मी हैप्पीनेस. yeah. It made me feel more Yeah, depressed. because if you're not in that right state, you Yes. can't do anything Yes. else. And I think this has been a consistent message that, we want to send out to every young person. जी. First, make sure you're in the right state of mind before you can do anything for anybody else, because बहुत लोग होते हैं कि हमने ये किया उनके लिए, पर जी. खुद, you're not so prioritization, आपने तो family और उनको दिया, but then came a time to prioritize yourself over everybody like else. how they say कि जैसे प्लेन में भी कहते हैं ना, पहले आप खुद seat belts, हाँ, मास्क correct. पहनो फिर दूसरे को ऊपर. और they say this sentence, charity begins at home. तो correct. पहले अपने घर को संभालो, यानी अपने आप को संभालो, उसके बाद आप दूसरों को संभाल सकते हो. And that's not being selfish. Yeah. It's just being self-understanding or self-realization. So when people say, oh, it's so selfish just looking after yourself, it's not being selfish. If you're not strong enough, जैसे अगर आप बीमार हो, अगर आप खुद को ठीक नहीं कर सकते हो, तो आप रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जी सकते. Correct. Then you need help from outside. पर आप खुद को स्वस्थ रखो, so you're energetic enough to look after everything. Yeah, and expectations when you're physically unwell are not there from others. Right. But when you're going through a mental thing, people don't see it. They don't so they see still expect the same amount. और मैं बताऊं, that makes you feel worse. It affects in every way. ये तो एक था, पर I also got physically affected. They say that sorrow manifests in different parts of your body. Yeah. So I reached a stage where I couldn't move my right hand at all. मैं ये हाथ उठा के कुछ भी नहीं कर सकती थी, एक पेन नहीं पकड़ सकती थी, एक गिलास पानी नहीं उठा सकती थी. और मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं ना गिरी, ना कुछ यहाँ पे लगा, कोई एक्सीडेंट नहीं था, कुछ नहीं था. But somehow this pain or this sorrow or whatever it was, it manifested here. And then everything went wrong. So our mind thought body link is so powerful. So powerful. Yeah, that we realize it when things go wrong. So the only thing we say, उसका opposite सबको समझता है. जी. अगर negative thought वो है और negative impact होगा, तो अगर positive रखोगे तो कितना ज़्यादा, you will बिल्कुल automatically वो आएगा. When you talk to people, and you see this. Actually, maybe we didn't understand it the right way, but हमें सिखाया गया था कि दूसरों का ध्यान रखना है. और हमने कहा हम दूसरों का ध्यान रखेंगे, दूसरे हमारा ध्यान रखेंगे. और अगर हम खुद का ध्यान रखते भी थे तो फिजिकल, हम फिजिकल अपना ध्यान रखते हैं. लेकिन पहली बात तो मन का ध्यान रखना was not on the topic also, क्योंकि पहले इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती थी. लेकिन अब तो सेल्फ केयर इज बिकमिंग अ वर्ड, कि प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर. लेकिन उसमें भी रियली क्या अपना ध्यान रखना है, वो कई बार अभी भी प्रायोरिटी पे नहीं आता. तो सेल्फ केयर में भी फिर बॉडी का ही ध्यान रखते हैं. सेल्फ केयर में मी टाइम में भी फोन लेकर ही बैठते हैं, दिस इज माई टाइम, सो आई विल सिट विद द फोन. अपने मन का ध्यान रखना, अपने मन का ध्यान रखना. और ये जो भाग्यश्री जी हैज एक्सपीरियंस्ड, इट्स समथिंग which many people will resonate with. Many people will resonate with that. Yes. And if you try and think कि reason क्या है इसका, ये क्यों हुआ होगा, there will not be a reason. You also will not be able to pinpoint a reason for it. कभी भी हमारे जीवन में ऐसे experience आ सकता है, लेकिन जब वो experience आ रहा है, we are able to detach and see that I am going through that pain. And then you're working on it. This is the power we need. Not live with the pain. Address it. कि ये है मेरा experience. And you will be able to work on it. But if you blame people, I mean, she could have gone into a victim mode. And say, look, मैंने जिन सब के लिए अपना इतना बड़ा career छोड़ा, मैंने ये किया. Even in your mind, you will go into a victim mode. Today, everybody is busy.
मतलब ध्यान भी रखें, बट वो लोग तो अपनी लाइफ लीड करने सुबह से शाम बाहर जाएंगे. सो आई एम अलोन, मेरी पूरी. सो यू कैन गो इनटू अ विक्टिम फीलिंग, यू कैन गो इनटू गिल्ट. आपको गिल्ट होगा कि मेरा वो डिसीजन ही राइट नहीं था, मुझे अपना करियर कंटिन्यू करना चाहिए. दुनिया करती है करियर और बच्चे, मैंने क्यों ये डिसीजन लिया. नाउ दैट विल कॉज यू इवन मोर पेन, क्योंकि आप वो गिल्ट में जाएंगे, आप विक्टिम फीलिंग में जाएंगे. फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी वो रिश्तों में. कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप कहेंगे इनके लिए मैंने ये डिसीजन लिया, यू नो. सो उस टाइम याद करना पड़ता है, मैंने इनके लिए डिसीजन नहीं लिया, मैंने मेरी प्रायोरिटी के लिए डिसीजन लिया. एंड गेट योरसेल्फ आउट ऑफ दैट विक्टिम फीलिंग. बट वो सबकॉन्शियस कहेगा नहीं, मैंने इनके लिए डिसीजन लिया. तो ऑल दोस थॉट्स, सो अगेन इट्स अबाउट राइट थिंकिंग. तो वो चीज का कोई कारण नहीं है. डिप्रेशन ऐसे आ सकता है हमारी लाइफ में, लेकिन जब वो आता है टू बी एबल टू सी दैट पेन, एंड क्योंकि वो बहुत इनिशियल स्टेज का होगा, यू नो, इट्स वेरी इनिशियल स्टेज, तो उसको देख पाना, एंड फिर वो फिजिकल कॉस्ट्यूम तक भी पहुंच गया है. सो दैट्स द अमाउंट ऑफ पेन उसमें है. सिर्फ हमें कभी कभी चेक करना पड़ता है, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर, बट जस्ट लाइक जनरली एवरीबडी, कि क्या कोई ब्लॉकेज है, कहीं कुछ ब्लॉकेज होता है कई बार इमोशनल, जो हमने कबर्ड में पीछे रख दिया है, यू नो, दैट वे. इट्स नॉट माई डे टू डे लाइफ सिचुएशन. मतलब इट्स लाइक कोई चोट लगी, मैं कहा इट्स ओके, ऐसे ऐसे किया और चल गए. It's a weight you're carrying all the time. हाँ, You know, like In they the say कि कोई subconscious. एक्सीडेंट होता है तो Yeah. वो एरिया नम हो जाती है फॉर प्रोटेक्शन. तो वैसे हमारे दिमाग में भी कुछ चीज जो बहुत दर्द करती है हाँ. एक नम हो जाती है और हम उसे एक अलग लॉक एंड की में बंद कर देते हैं. और होता है ये सब लोगों के साथ सो होता है. मोस्टली दैट इज द कॉज. क्योंकि उसको हमने कहा कि ठीक है, बट उसको हमने हील करने के लिए या अपनी सोच को उसके बारे में चेंज कर, क्योंकि समवेयर इट विल बी अ सिचुएशन जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, तो हम बाहर उसका कुछ नहीं कर सकते. तो ठीक है, मेरा वो दर्द है, बट आई हैव टू गो बैक विद लाइफ. तो हम उस दर्द वाली बात को पीछे रख देते हैं, बट इट्स स्टिल इन माय सबकॉन्शियस. तो वो जैसे मन का असर शरीर पर पड़ा है ना, ऐसे ही वो सबकॉन्शियस में पड़ी हुई जो चोट है, वो अपना काम पीछे दर्द का क्रिएट कर रही होती है, और फिर सडनली हमें वो दर्द एक दिन फील होना शुरू हो जाता है. सो दैट इज समथिंग वी ऑल नीड टू चेक, कि कितनी भी बड़ी बात हो आपके पास, कितना भी किसी ने आपके साथ गलत किया हो, कुछ आपकी लाइफ में फेलियर आया, मतलब कुछ भी, एवरीबडी विल हैव डिफरेंट. वर्क ऑन इट, जस्ट डोंट कीप इट असाइड. आप उसको रख न दे के ठीक है ये दर्द है, So address it. address how do it, you- work on it, write your affirmations for it, heal it, meditate on it. Everybody can choose their own There way. is. बट वो चोट को पीछे करके रख नहीं दो, बिकॉज हमें समाज ने एक और चीज भी सिखाई, टाइम विल हील. समय हमें ठीक कर देगा, तो हम उसको रख देते हैं कि समय हमें हील कर देगा. लेकिन पर वो नहीं होता है. वो नहीं होता है. वो क्यों नहीं होता है उसका भी रीजन है. समय हील कर सकता है. सपोज अभी मुझे हाथ पे चोट लगे, मैं बोलूंगी समय इसको हील कर देगा, एंड एक्चुअली हील करेगा, बट फॉर दैट मुझे इस हाथ को Environment. यूज नहीं करना है. Open, but you also have to keep it open. Open, हाँ, तो yeah. बट उसको I'll- यूज नहीं करना चाहिए ना, जी, मतलब जी. उसको रखो तो वो समय उसको हील करेगा. जी, लेकिन इसको सारा दिन यूज यूज करना कर है, रहे हैं. तो फिर इधर टच किया तो चोट लगेगी, इधर किया तो हाँ. दर्द लगेगा, एंड फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि वो वुंड हील तो नहीं हुआ, वो और क्रॉनिक हो जाता है, क्योंकि वो इतनी जगह टच होते होते हाँ. होते. तो हमारी लाइफ में कोई एक बात आती है, बड़ी होती है, हम कहते हैं समय अनुसार ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं. जिनके लिए हम कर सकते हैं बात, हम वर्क करते हैं. समय इसको ठीक करेगा, हम साइड पे रख देते हैं. फिर छोटी छोटी बातें तो रोज ही आती रहती हैं, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया किसी चीज पे, ये तो एक्चुअली हमें पता नहीं चलता कि उस वुंड के ऊपर थोड़ा 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 चिप होने दर्द लगता है. And हो रहा होता है, और फिर किसी भी दिन वो दर्द मेरे टिपिंग पॉइंट से क्रॉस हो जाता है, बस. सो द रीजन इज दैट. तो इसीलिए एवरीबडी नीड्स टू लर्न कि क्यों हुआ, नॉट आई एम जस्ट जनरली कोई ना कोई आपका इमोशनल बैगेज होता है. तो इसलिए इमोशनल बैगेज को एड्रेस करें, डोंट लीव इट फॉर टाइम, क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है आपकी लाइफ में कल एक और बड़ा क्राइसिस आ जाए, और आपने सोचा था ये चोट अपने आप ठीक होने वाली है, और वो क्राइसिस आ गया, आपके पास ताकत नहीं होगी उसको फेस करने के लिए. तो कुछ भी हो, कई लोगों के पास बचपन की बातें होती है, कई लोगों के पास. वर्क ऑन इट, डोंट से दिस विल हील विद टाइम.
टाइम डज नॉट हील, यू हैव टू हील योरसेल्फ। चोट भी हमारी क्रिएटेड है, ठीक भी हम ही करेंगे, भले कोई और ने कुछ किया हो हमारे साथ, सोच तो हमारी ही है ना। तो वो सोच ने हमें दर्द दिया है, सोच पर वर्क करेंगे, करते जाएंगे, तो सोच ही घाव बनाती है और सोच ही दवा लगाती है। तो इसीलिए थिंक राइट, कि राइट सोचते जाओ उस घाव के ऊपर। And the power of thinking right is because yours is a great example. You overcame depression. Now you talk about wellness and fitness. Of course. And I you know, think- lives I think fitness you also. live fitness. Doesn't talk, so she lives what fitness. a shift, huh? that Yeah. that was honestly a very big shift, क्योंकि उस वक्त जो मेरे शरीर की, मन की, दिमाग की हालत थी और आज जो है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ 360 चेंज ओवर। बिल्कुल। I'm feeling better, I'm talking better, I'm connecting with people better. रिश्ते ज्यादा खूबसूरत हो गए मेरी जिंदगी के अंदर। काम कर रही हूँ मैं, तो आई थिंक इन ऑल एस्पेक्ट्स बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बिकॉज एक मैनिफेस्टेशन या एक थॉट प्रोसेस जो था वो अलग हो गया। मतलब इन व्हाट शी सेड राइट नाउ अबाउट हीलिंग, मैंने एक छोटी सी चीज मेरी जिंदगी में वो काम कर गई, कि अगर कोई चीज मुझे चुभती है, आज कोई कुछ बुरा भला खेल देता है, मैं डायरेक्टली उसी वक्त या इन दोस 10-15 मिनट्स में मैं वापस जाके बोल देती हूँ उनको, आपने अभी जो कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, आप जानो कि आपने मुझे दर्द पहुंचाया है। वो करके मैं रूम से बाहर निकल जाती हूँ, और यही टोन में, चिल्लम चिल्ली नहीं, कुछ अक्यूजेशन नहीं, कुछ नहीं, बस इतना ही कि आई डिडंट लाइक व्हाट यू सेड वाज वेरी रॉन्ग। ये करके मैंने तो मेरी मन की बात कहेगी। अब सामने वाला अगर रिग्रेट करता है, सॉरी बोलता है या कुछ करता है, वो उनका कर्मा, मैंने तो कह दिया तो मेरा मन तो हल्का हो गया। सो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट ऑल्सो, कि उस वक्त चिल्ला के नहीं, बल्कि ये टोन में कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है और आप मुझे दर्द पहुंचा रहे हैं, बस। सो you acknowledge also that you're hurting. So I mean, I don't know, हर किसी के साथ अलग करे नहीं करे, मेरे लिए ये बहुत But काम that's an कर गया। acceptance of the situation, Yeah. and kind of getting it off your mind, because you're not carrying it forward for many years, जी, which जी। people typically जी। tend to do, and then but then making the shift, ये जो आपने shift किया अभी, you're a content creator and there are so many new opportunities, same way to look at you again in the public eye. How does it feel? Does it feel different? Do you feel, what are you thinking right today when your state of mind comes to that? Most important is कि आप don't look for validation outside, कि कोई और कहे कि आप अच्छे हो या आप खराब हो। आप क्यों सुनो? अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही है और ये जो चीज आप कर रहे हो वो सिर्फ आज नहीं, एक लंबे अरसे तक आप यूं ही इतनी ही रेजिलियंस से, इतनी डेडिकेशन के साथ कर सकते हो, गो अहेड एंड डू इट। इट विल मेक अ डिफरेंस। स्पेशली काम के बारे में मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी चीज का इमीडिएटली असर नहीं होता, बहुत कम लोगों को वो चीज मिल जाती है, पर जैसे कहते हैं ना कि आप शिद्दत से कोई चीज मांगो तो पूरी कायनात आपको देने के लिए राजी हो जाती है। तो वो वाली बात है कि आप काम में उतने ही डेडिकेशन के साथ, रेजिलियंस के साथ, एंड डे आफ्टर डे विदाउट एक्सपेक्टिंग कि सामने से कोई रिजल्ट आने वाला है, आप कर रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है वो काम करने में, उसमें आपको खुशी मिल रही है, तो आपकी खुशी आपके कर्मों से है, तो आप वो करते जाओ, बाकी लोगों को जो बोलना है, करना है, वो करते जाए। जब आप कर रहे हैं ना, उस समय ही एनर्जी क्रिएट हो रही है। जी बिल्कुल। कई बार अगर आप बेमन से कुछ करें तो आपने एनर्जी नहीं क्रिएट की, भले उसके लिए आपको कितना भी वैलिडेशन मिले, अप्रिसिएशन मिले, सोशल मीडिया पे तो व्यूज भी मिले,
लेकिन उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एनर्जी तब मिलती है जब हम करते हुए करते हैं। उसको क्रिएट करते जी हैं। बिल्कुल तो दैट इज द बिल्कुल एनर्जी। बाकी तो सिर्फ अप्रिसिएशन है, वो तो आई और गई। वो तो गई, तो दैट वो इज, वो लास्टिंग भी नहीं वो होगी। लास्टिंग नहीं है, हम्म। बट जो आप इंटेंशन से कर रहे हैं ना, वो आपकी शक्ति बनती है। इसीलिए कोई देखे ना देखे उसको, आप फिर भी करते जा रहे फिर भी हैं और करें, क्योंकि अच्छा अपना लगता बेनिफिट हो है। रहा है। No, and you're authentic to yourself. See, आजकल you see this huge opportunity in India has come up with young people, especially in the creator economy, where people are deriving their livelihoods, and it's going to be the way of life for them, for years and decades to come. और उसमें जो एक चीज होती है is authenticity is what really drives people both to create the right kind of content and for consumers to be able to relate to that, because अगर उन्होंने आपको they looked at you as your authentic true self, there's more relatability, right? Because they know you're बिल्कुल not trying to position yourself or sell something or represent something that you're not. So you're now in this whole phase of content creation and actually doing that. So how do you pick your subjects, your themes, what you want to reach out to people for? तो मेरा एक सिंपल ट्यूसडे टिप्स बाय बी है, हाँ जो हर मंगलवार जो मैं करती हूँ हाँ वो लोगों तक पहुंचाती हूँ। हाँ वो चाहे खाना बनाने का हो या फेस पैक हो या मेरे मन के विचार हो हाँ या जो मैं रोजमर्रा की जिंदगी में करती हूँ। सो इट्स बिकॉज आई एम डूइंग इट माई सेल्फ। मैं जो कर रही हूँ मेरे लिए बेनिफिट हो रहा है, इसलिए मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि मुझे हेल्प कर रहा है ये चीज। तो अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आपकी मर्जी। सो पीपल ऑल्सो आस्क मी कि आपको ट्रोल्स नहीं बोलते वाई यू डूइंग दिस, या आपके बारे में बुरा नहीं बोलते। एक्चुअली आप देखा जाए तो मेरे कंटेंट में बहुत कम लोग उल्टा बोलते हैं। ऑल्सो बिकॉज देर आर नो रिपरकशंस। कोई मैं जो बोल रही हूँ उसमें कोई गलत प्रभाव तो नहीं कर रही हूँ, मैं ये जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ जो मैं खुद कर रही हूँ। सो what you're saying, the relatability or the authenticity That comes is out. just there, out there. Yeah. So, Instagram, YouTube, now all these platforms are using this kind. So, while we do have a lot of, what you said, controversial, negative, we got many of the Of other course, of course. aspects, distractions, or what keeps people addicted, to sometimes to content one after the other. There is an opportunity for a lot of good, right people to do good, right things also. Right. So how does one make choices? Because there are a lot of young people on, what you should do on Instagram, what you should do on YouTube. Not that, but if we had to prescribe something, you have any thoughts on that? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो भी आपका कर्म है। सो बी केयरफुल। आप उसको पैसों के लिए बना रहे हैं, आप उसको नेम फेम के लिए बना रहे हैं, आप उसको सिर्फ शेयर करने के लिए भी बना रहे हैं। इंटेंशन आपका तीनों में से कोई भी हो सकता है, तीनों राइट है। somebody needs to earn money, they create Yeah. content, it's perfectly fine. somebody wants recognition, उसलिए कर रहे हैं। somebody wants to just share, वो भी कर रहे हैं। आपका इंटेंट राइट है, लेकिन वो कंटेंट आपका कर्मा है। इट्स लाइक पहले भी हम ये करते थे, लेकिन हम फिजिकल स्पेस में करते थे कि अगर मुझे कोई चीज बेनिफिट की तो आई विल टेल हर, यू नो व्हाट, ये बहुत अच्छा है, आप भी ट्राई करो। फिर मैं किसी और को बोलती थी आप भी ट्राई करो। उनमें से कोई ट्राई कर भी लेता तो वो भी मेरा कर्मा था अगर वो रॉन्ग जाता। लेकिन हम कितने लोगों को बोलते थे 2 4 5 10। अभी वंस यू पुट इट ऑनलाइन, उसमें कब कौन जरूरी नहीं आज देखेगा, 2 साल बाद कोई देख सकता है वो वाला कंटेंट, बट वो आपका कर्म तो दुनिया के अंदर चला गया और पूरे दुनिया में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कभी कभी वो देखेगा, उसको उसकी सोच पर उसका असर पड़ेगा, उसकी पर्सनालिटी पर उसका असर पड़ सकता है, कल उसका कर्म बदल सकता है बिकॉज ही गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट यू हैव शेयर्ड। इट्स अ वेरी 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 बिग कर्म। किसी की डेस्टिनी चेंज हो सकती है या इस तरफ या उस तरफ, और जिस तरफ भी उसकी डेस्टिनी चेंज होगी वो आपके कार्मिक अकाउंट में आने वाला है। इतना ध्यान रख के नाउ शेयर विद द वर्ल्ड। डोंट थिंक हाँ मुझे ये आता है, मतलब बच्चे आजकल आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस। अभी तो उतना ठहराव नहीं है, इंटेंट नहीं पता, बस
प्लेटफॉर्म है, हम बना के दे देंगे. नो, इट्स नॉट अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ कर्मा एंड इट्स गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर डेस्टिनी. आपने कहीं कुछ बना के कुछ डाल दिया, किसी न किसी के मन पर अगर उसका गलत प्रभाव पड़ा, इवन अ सिंपल थिंग लाइक वोकैबुलरी, भाषा, आप किस भाषा में बोलते हैं अपने कंटेंट क्रिएशन में, क्योंकि कोई आपको रोज सुन रहा है या हफ्ते में एक दिन सुन रहा है, थोड़े दिन बाद वो उनकी भाषा बनने लग जाती है. अगर वो भाषा सही नहीं है और वो भाषा एक एनर्जी डिप्लीटर है, अगर दूसरों की एनर्जी डिप्लीट हुई, कर्मा आपका था तो आपके कार्मिक अकाउंट में तो वो आ ही गया. तो इसलिए टू बी वेरी केयरफुल. इट्स I नॉट think जस्ट it's कंटेंट also कि क्रिएशन. जो आप करते हो, forget about the others. It can come back to you. Yeah, that's what आपने she said. आज कुछ किया हाँ. और वही चीज समझो, आज जैसे आपने कहा कि बच्चे नहीं समझ पाते, ठहराव नहीं है, वो कुछ चीज कर जाते हैं, और ज्यादा नहीं 5 साल बाद हम्म. सपोजिंग उन्होंने जो अभी सोशल जो- मीडिया पे हाँ, अपलोड correct. किया है, फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की ने कुछ पिक्चर्स डाले हैं Yeah, और वो तो अलग. 5 साल बाद उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, उसके बच्चे ये देखते हैं और बोलते हैं, मम्मी आपने क्या किया? You know, The that's repercussions, yeah, the yeah, repercussions are always there of what you put out. yeah. आप जो भी करो, जो सोचो, जो समझो, जो आप बाहर दुनिया पे डालते हो, वो कहीं ना कहीं तो आज रजिस्टर हो जाता है. But that's You what know, they're which saying. wasn't there earlier. And that आज is the तो beauty. है. And Bhagyashi, that's the beauty of the circle of life. Because like we started, at that time, for that person, it seemed like the right thing to do. Because बिल्कुल. they were trying to build a career around And that. so much appreciation, But everything. understanding the fact like that this is going to be my karma is important to keep in mind. Because then when whatever comes as a outcome of Get that, the you are in a consequences position to to be able bear. to Yes. at least, you know. But you will not come to know that this No, no, you will not. consequences You will because not. of Yeah, that. yeah, हाँ, yeah. क्योंकि consequence बिल्कुल उसी डायरेक्शन नहीं, में वैसे नहीं नहीं आएगा. आता है. कहीं Correct, और correct. से आ अगर सकता है. मैंने किसी को दर्द दिया है with Right, what I have correct. given out into the world, या किसी का कर्मा गलत हो गया उसकी वजह से because of what I gave out in the Right. world, तो फिर उसका consequence तो अगर आएगा. होगा, correct. वो आएगा. तो pause, you know, कई बच्चे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं. कई बच्चे इसलिए कर रहे हैं, दिस इज एन इजी वे टू गेट रिकग्निशन. ऑफ कोर्स इट्स एन इजी वे टू गेट मनी आल्सो नाउ. तो वो पैसा भी जो बहुत ज्यादा आ रहा है किसी के पास एक यंग एज में, वो भी उनके पास वो ठहराव नहीं है कि उस पैसे को कैसे यूज करना है, उस पॉपुलैरिटी को कैसे यूज करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करके नहीं आया है. मेहनत Correct. करके नहीं आया तो सडनली ज्यादा आता है. वो किस मतलब उसके बहुत सारे और फिर जिस दिन बंद हो जाता है, उस दिन अलग प्रॉब्लम, वो क्राइसिस, उल्टी प्रॉब्लम हो नहीं, जाती है. multiple. अभी now today you can use technology, AI, and actually spread fake content. Yes. But you get the views and you make the money. yes. But the people who have But it's seen very that scary. have got impacted in many ways. So there is always लेकिन going वो to भी be तो आपने something. पैसे गलत तरीके से कमाए ना फिर Correct, करके correct, से. सो correct. दिस इज ऑल. तो कर्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरगॉटन हो गई है इस तो सारी ये चीज तो के अंदर. क्रिएटर साइड का हुआ. हाँ. अभी मैं कंजम्पशन साइड पे जाता हूँ. हाउ डू यू चूज व्हाट कंटेंट टू कंज्यूम एंड व्हाट कंटेंट नॉट टू कंज्यूम? Whichever content will energize you, consume, and which doesn't, please don't consume. It is not time pass. Content time pass नहीं है क्योंकि वो आपके सिस्टम के अंदर जा रहा है. तो हम उसको इमोशनल डाइट कहते हैं. वो आपके यहाँ चला गया. जैसे किसी ने कोई बात की, आपके अंदर चली गई. भले आप ऐसे करते करते वो सुन ली, वो आपके अंदर चली गई. उनकी भाषा आपके अंदर चली गई, उनकी वाइब्रेशन आपके अंदर चली गई है. आप उसको डिलीट नहीं कर सकते. वो आपके अंदर चला गया. और अगर आप रिपीटेडली रोज 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 ऐसे देख रहे हैं, थोड़े दिन के बाद आपका व्यक्तित्व बदल जाता है, दिस साइड और दैट साइड. तो कंटेंट बहुत ध्यान से लेना चाहिए. कंटेंट Very आपके मन beautifully की said. खुराक है. मन की खुराक है. तो ध्यान से लें कि जो आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो आप बन रहे हैं. एक्चुअली कंटेंट संग का रंग है. तो बचपन से हमने सीखा था संग का ध्यान रखना. सही बात. संग सत्संग तारे कुसंग डुबोए, ये हम बचपन से सुनते हैं. तो कुसंग मतलब इट इज नॉट राइट एनर्जी. तो इसलिए कंटेंट कंजम्पशन का तो बहुत it's ध्यान a very, रखना. very important part because like if we see content consumption say Yeah. in a country like India, Yeah. it's massive. It's massive, And it's probably the highest in the world in terms of, you know, many angles and the number of minutes and hours people are spending. But there is also this, you know, little nuanced or maybe a little more intelligent mind, so to say, which says that
listen, I understand that this is content, I understand ये entertainment है, और मैं वो gap रख सकते हूँ. लाइक हमने जाके अगर हमने थिएटर में शो देखा तो हमको समझा कि ये शो था और इसका मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, जो आप बोले ना टाइम पास एंड एंटरटेनमेंट. No, अभी ये जो it's चीज like है, food. very It's important. like food. But I Yeah. think even entertainment can be good entertainment. नहीं, they are saying I Yeah. take it as entertainment, it will not affect. It will not हाँ, affect. So that's the what they are point saying. is, how does it, वो टाइम पास है. टाइम पास यानी कि टाइम पास is not affecting me. देखो, You know, people यहाँ have पे this- जंक पर- फूड you पड़ा hear है, this. यहाँ पे हेल्दी फूड पड़ा है, सब कुछ है, मुझे चूज करना है. आई कैन नॉट से मैंने बस ऐसे ही खा लिया. भले आप ऐसे ही खा लो, नो प्रॉब्लम, बट वो गया तो आपके सिस्टम के System अंदर, में। विच इज फाइन. और फिर आप ध्यान रखना कि जंक फूड अडिक्टिव होता है. तो आपने एक बार खाया, 2 बार खाया, 5वीं बार आपका वही खाने का मन करता है, पर थोड़े टाइम के बाद आपको पता ही नहीं चलता, अनइंटेंशनली भी आपका हाथ उसी चीज की तरफ जा रहा है क्योंकि वो अडिक्टिव है और फिर आपके अंदर वो ज्यादा जा रहा है. तो अगर आप एक दिन कोई जंक फूड खा लो कुछ नहीं होगा, आप 5 दिन खा लो तो कुछ नहीं होगा, रोज खाने लगेंगे क्योंकि वो स्टोरी है अगले दिन के एपिसोड में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो एडिक्टिव बनाई एडिक्टिव गई है. तो फिर उसके प्रोसेस में आपने जंक फूड रोज खाना शुरू किया तो असर तो होगा ही माइंड के ऊपर. Then you have to go for a detox. नहीं, वो भी है. So solution सब चीजें के लिए है सोसाइटी No, में. But also I feel but you कि mean हाँ. जब आप कहते हो like we come from the entertainment that's world, right. तो जब हम देखते हैं कि ये फिल्म है, ये entertainment होके हम घर आते हैं. But like she says, if it is repetitive, then it is also like procrastination. कि आप बैठे बैठे स्क्रॉल करते जाओ, जो वक्त आप यहाँ पे दे रहे हो अगर आप किसी और चीज पे दो तो पता नहीं आपके लाइफ में कुछ और प्रोग्रेस हो जाए. सो दिस एंटरटेनमेंट, वी ऑल नीड रिलैक्सेशन, वी नीड एंटरटेनमेंट, सही है, समझ में आता है. वो वक्त को हमें उस वक्त तक ही रखना चाहिए. व्हेन इट क्लाइम्स ओवर टू आवर अदर पोर्शन ऑफ आवर लाइफ, जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान 4 घंटा भी सोता है, 6 घंटा भी सोता है, 10 घंटा भी सोता है. 4 घंटा सोने वाला इंसान शायद शरीर से थक जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. 10 घंटा वाला इज शायद गोइंग इनटू डिप्रेशन, शायद उसके जिंदगी में ज्यादा काम नहीं हो रहा है. सो यू हैव टू चूज द मिडिल पाथ. देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस ऑफ लाइफ कि ये भी मत करो, ये भी मत करो. एंटरटेनमेंट की जगह है डेफिनेटली. और मैं ये कहूंगी क्योंकि हम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से हैं, भाई हम वो माइनस नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि एंटरटेनमेंट जरूरी नहीं है, आप सिर्फ काम करो. नहीं, पहले क्या था, एंटरटेनमेंट वाज फिल्म्स, राइट. आप कितनी फिल्म देखेंगे एक महीने के अंदर? तो हम पहले तो साल में एक देखते थे. जब ये फिल्म आई थी उस ईरा में तो हम साल में 1 या 2 देखते थे. यानी दैट वाज दैट ईरा. तुम्हारे पास हो गए, तुम चलो आज फिल्म देखने को मिलेगी. तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा. इवन इफ इट्स अ वर्स्ट नेगेटिव फिल्म, आप सोच लो, हम थ्रिलर भी देख लेते थे, हम हॉरर मूवीज भी देख लेते थे, हम कितना देखेंगे? साल में 1, साल में 2, चलो महीने में 1. बट आप रोज जब कंज्यूम करेंगे ना, अगेन इट्स लाइक आपने जंक फूड साल में 1 बार, महीने में 1 बार, लेकिन रोज, फिर तो वो असर करेगा ही करेगा. And the metrics for all these platforms is engagement. That is what. So it's designed also that way, ना? It's designed that way. तो वो लोगों के मन के साथ खेल रहे हैं अभी, जो बना रहे हैं. Yeah, and you're talking of films, right? There's always been this debate that films are a reflection of what is happening in society, right? And there is this other thing that films actually make society the way it is. Yeah. So it's right? It's it goes both ways. Which came first, the chicken or the so egg? this is that तो affirmation. वही चीज हुई ना. वही होती है ना, no affirmation thing, right? Am I describing the world the way I see it, or am I describing the world, at least in my thoughts, the way I want to see it? जैसे right? So दोनों चीजें होती हैं. सिंपल सी चीज है. अब लोग बोलेंगे, my children will probably tell me कि आपको समझ में नहीं आता इसलिए आप ये कहते हैं. रैप म्यूजिक, right? A lot of rap music is, the wordings are all negative. Yeah. अब देखे जाओ तो it's rebellious, it's negative, but it is called music. हमारे समय में ये म्यूजिक नहीं था. Music was something that was good to the ears, which soothed you, which gave you energy, which calmed your mind. That was music. आज भी आप सोचो कि पुराने गाने लोग आज भी पसंद करते हैं, याद रखते हैं, उनकी लिरिक्स याद है. आज के नए गानों की लिरिक्स भी याद नहीं है लोगों को. क्यों?
It is all very temporary. Yeah. No, I think, what you say is also, it comes back to like vocabulary is Yes. different. The way we define music, the way this generation, maybe they use the word music Yeah, because but that's it what is they've not. inherited. Maybe it is, but whatever it is, a reflective of the state of mind of it is probably an expression of, the way their peers are, their life is, their society, and they use it as an, maybe as an outlet, right? As in a mechanism to be able to. So here, the generation always, Which is, you don't get us, right? Yes. Now how do we bridge that gap? I mean, our whole effort, honestly, the biggest effort of Think Right is to see how we can help bridge that gap, right? Firstly, is there a gap? At least, the young gen says, we don't get us, you don't. How do we say, yes, we get you, let's come, let's understand, let's build trust, let us work on these things together, because this is going to be very important for you to be able to be the best version of yourself, to Absolutely. see, like, your story Yes. is a great example where you're sharing today, that what challenges you had, what you went, it is through personal examples that you can take these kind of messages out, right? Right. But building trust with the young generation, I think what does most it take? important is patience. I don't know whether. Yeah. I think patience is something that is lost in today's world. हम बच्चों को सिखाते थे पेंटिंग बुक और ब्रश लेके बैठ जाओ ताकि वो एक जगह पर बैठ के एक काम कर सकते हैं. हम उन्हें फील्ड में भेज देते थे कि गो एंड प्ले अ गेम बिकॉज इट वाज टीम वर्क एंड यू हैड टू वेट टिल द एंड ऑफ द गेम टू गेट द रिजल्ट. इट वाज ऑल अबाउट पेशेंस बिल्डिंग. अब एक पढ़ाई का समय था, एक खाने का समय था. अब समय की कोई परिभाषा ही नहीं रही. एवरीथिंग हैज टू बी नाउ, एवरीथिंग हैज टू बी इंस्टेंट. कॉफी भी इंस्टेंट चाहिए, ये भी इंस्टेंट चाहिए. प्लेजर इज इंस्टेंट. सो टिल दे डोंट हैव पेशेंस, हाउ कैन दे डेवलप अ रिलेशनशिप? एक दूसरे का साथ कैसे दे पाएंगे, एक दूसरे को समझ कैसे सकेंगे, जो काम वो करना चाहते हैं वो कैसे कर पाएंगे अगर पेशेंस ही नहीं है? तो पेशेंस कल्टिवेट करने के लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे शिवानी बहन ने समझाया, कि स्टार्ट टू मेडिटेट, टू बी एबल टू फॉरगेट कि एक चीज पे मेडिटेशन है, फॉरगेट दैट. पर एक जगह पे आप स्थिर बैठ Yes. सकते हो. Absolutely. Doing Start- nothing. हाँ, We start discussed with that. that. Yes. Doing स्टार्ट nothing. विद दैट कि आप 2 मिनट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट एक जगह पे बैठ सकते हो विदाउट हैविंग टू लुक एट द वॉच. कि घड़ी को बस सामने रखो, उसमें आपका दिमाग चारों तरफ भागेगा कि कब वो घड़ी का कांटा मूव करे और 2 मिनट Correct. खत्म हो जाए. Correct. So ये जो generation, ओवरथिंकिंग टाइम माइंड है ना, अगेन कंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपने कहा कि फिल्म ने समाज से लिया या समाज एंटरटेनमेंट से प्रभावित हुआ. समाज में कुछ एक चीज होती है समवेयर, और उसको इंडस्ट्री उठाएगी और उसके ऊपर एक फिल्म या एक सीरियल बनेगा. जब उन्होंने उसको उठाया, उस कॉन्सेप्ट को, और उससे एक फिल्म बनी, तब वो समाज में कहीं कुछ थोड़ा सा हो रहा था. लेकिन जब वो एक फिल्म बन गई तो फिर वो घर घर में पहुंच गई. फिर अब देश के या दुनिया के हर माइंड पर पहुंच गई, और जैसे ही वो सबके माइंड पर पहुंचती है, वो समाज में और होनी शुरू हो जाती है. तो नाउ यू कैन टेक इट बोथ वेज कि किसने किस पर इन्फ्लुएंस किया. तो इंडस्ट्री से समाज में हो रहा था, इसलिए हमने उस पर फिल्म बनाई. पर जब आपने उसको फिल्म बनाई, उसके बाद वो समाज में बहुत ज्यादा होने लगता है. आप अभी भी देखें, दुनिया में कुछ भी होता है, एक बार वो न्यूज में आ जाता है ना, कुछ ही दिनों के अंदर वैसे केसेस और हो जाते हैं. एवरी टाइम यू विल सी एक केस होता है, जिस नॉट because everybody reads it, it goes on everybody's mind. In the next 2-3 weeks, you will have multiple cases of the same type. Even with suicide, this is a study. कहीं एक होता है and then it comes so much in the news. कुछ दिनों में आपको multiple 2-3 और ऐसे cases में effect on the mind of what we are absorbing. Very deep. पर इसमें आपको ये नहीं लगता, सॉरी बट थोड़ा एक अलग व्यू है, कि पहले हमें जानकारी नहीं थी. फिल्म्स ऑल्सो गिव अस दैट अवेयरनेस कि कोई चीज ऐसे हो रही है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है. नॉट जस्ट सीइंग फिल्म्स,
कोई Any भी gender. कंटेंट Yeah, हो of या course. एनी Yeah, yeah, इन्फॉर्मेशन yeah, या yeah. कुछ लिखा हो, हाँ. उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम इसका सोल्यूशन कैसे निकले? Very true. पर जानकारी होने से हमें इसका सोल्यूशन मिल जाता है, 10 लोग बात करते हैं, इससे मेरे ख्याल से Awareness भी create हाँ, होती है. सो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, जैसे कहते हैं ना, Just एक depends on क्या दुहेरी उन्होंने तलवार कहा. है, जो जिस तरीके से देखे उस तरीके से, जो एक सही माइंड से देखे Correct. वो उसका सोल्यूशन निकालना शुरू करेगा, और जो गलत इंसान होगा, गलत नहीं, माइंड and से also देगा, depends कि आपने उसको present कैसे किया. कैसे किया। Yeah. है ना, जी, प्रेजेंट कैसे जी। किया, उसके बारे में सोल्यूशन पे भी बात की, या उसके अंदर से पॉजिटिव चीजें क्या किसी ने सीखी, दैट आल्सो कैन बी और ब्रॉट वही आउट होता वेरी है ना कि ब्यूटीफुल. the movies, like since you're talking of films, जी, जो चीज ऑडियंसेस को पसंद आई उन Yeah. दिनों 50 हफ्ते चलती थी, 25. It was a very easy way to know what is it that is resonating with people, resonating, Very true. yes. right? And you saw that, good, positive movie. You could see the difference between one of those kinds of movies or the other. And I think what you said, there was very limited choice. आज the clutter is so much that पर and- आज भी आप देखिए हाँ. कि एक्चुअली जो फैमिली फिल्म्स होती है, जो लोग इकट्ठा अपने परिवार को साथ में लेकर जाकर देखते हैं, थिएटर्स में आज भी वही फिल्में बहुत अच्छी चल रही है। वेरी ट्रू. इंडिया इज अ प्लेस वेयर वी रन बाय इमोशंस। जो फिल्मों में इमोशन नहीं दिखाया जाता, लगाव नहीं दिखाया जाता, वो कहीं ना कहीं अधूरी लगती है। फिल्म मॉनेटरीली सक्सेसफुल भले ही हो, लेकिन वो फिल्म लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में नहीं यादगार बन जाती। यादगार फिल्में सिर्फ वही होती है जो यहाँ पे कनेक्ट होती है। correct. सो आई थिंक नो मैटर व्हाट वी से, बहुत सारे कंटेंट और कंटेंट मेकर्स भी ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पैसे के लिए फिल्म बनानी होती है, और जैसे इन्होंने कहा कि वो भी उनका karma है, वो कहीं ना कहीं इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन देम। पर जो सही इंटेंट से हो फिल्म बनने में, जो यादगार फिल्में होती है, जो दिल को छू जाने वाली फिल्म होती है, वो हमेशा कहीं ना कहीं it will remain in history. And is that the reason It's- you got both your children? They both turned actors and they've done so well, both, नहीं, Abhimanyu and उल्टा मैं Avantika. बताऊं Yeah. कि I आप was उनको guidance देते नहीं, I was हैं? completely against. अच्छा. क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर जैसे कहते हैं ना, रेत अपने मुट्ठी में नहीं रुकती, वैसे वक्त अपने मुट्ठी में नहीं रुक सकता, और वो बहता ही जाता है, बहता ही जाता है। अपने को ये उसका एहसास नहीं होता कि कब वापस आने वाला है। सो फॉर समवन टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री, आप अगर मनी फेम के हिसाब से यहाँ पर आओ तो ये आपके मन पर बहुत गहरा असर कर जा सकता है। इट्स नॉट समथिंग दैट कम्स इमीडिएटली। अगर आपको फिल्म्स बनाने का, फिल्म्स में काम करने का, एक्टिंग, इफ दैट इज योर पैशन, आप टिक सकते हो। बहुत सारे ब्रिलियंट एक्टर्स हैं जो आज मतलब उनका नाम जाना जाता है। जब उन्होंने शुरुआत की तब पता नहीं कितने 40-50 फिल्में की जो जानते भी नहीं लोग, और आज तक सिर्फ इस वजह से टिक पा रहे हैं क्योंकि उनका वो पैशन रहा है, उनको अपने काम से प्यार है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मनी और द फेम। तो इसलिए जब मेरे बच्चे आए और उन्होंने अपना डिजायर व्यक्त किया कि हम ये करना चाहते हैं, तब मैंने उनको वही बोला कि इफ यू आर हियर फॉर मनी, इफ यू आर हियर फॉर फेम, प्लीज मत आना। क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चों का दुख देखना बहुत मुश्किल होता है, और इसमें दुख ही दुख होगा, क्योंकि 2 फिल्मों के बीच में जो इंतजार होता है, आपको पैसे उसके लिए मिलते हैं, फिल्मों के लिए पैसे नहीं मिलते। दो फिल्म आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको खुशी मिलती है टू बी ऑन सेट, पर जो इंतजार होता है वो कभी कभी बहुत लंबा होता है और बहुत तकलीफदायक भी होता है। जो आपको सेकंड फिल्म या सेकंड कंटेंट करने के लिए जो
शायद एडजस्टमेंट करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, अपनी वैल्यू सिस्टम बदलनी पड़े, उसमें जो आपके ऊपर असर हो सकता है, जो तकलीफ हो सकती है मेंटली, दैट कैन बी very great if you're not prepared for it. So my advice was basically that. No, I think, it is always each, like you say, right? Each person is on their own journey and they've found it and they've discovered it. And See, मैंने वही बोला, जब तक आप खुश हो तब तक आप करो. जब आपको लगे कि इसमें मुझे खुशी नहीं मिल रही, तो बिना संकोच छोड़ देना, क्योंकि that is progression in life. ये नहीं जमा, कुछ और कर. No, I think this whole conversation has been about progression, from where you were to where you are and where you will go. And I think क्योंकि सिर्फ मेरे लिए या मेरे बच्चों के लिए नहीं, ऑडियंस में बहुत सारे लोग होंगे जो ये राह पे चलना चाहते हैं, जो फिल्मों में जुड़ना चाहते हैं. तो उनके लिए भी ये है कि अगर आप निस्वार्थ काम कर सकते हो तो जरूर कर लीजिए. ये भगवान भी लिख के नहीं दे सकता आपको कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं. सिर्फ काम करने में आपको अगर खुशी मिल रही है तो जरूर कीजिए. अगर आप शोहरत के लिए, नाम के लिए, पैसे के लिए कर रहे हो, कोई और लाइन ढूंढ लीजिए. No, wonderful advice, and we can keep talking, but both it's been a wonderful conversation. And just before we end, we have this little section of a mindful minute. I'll ask you a few questions, जैसे आप थोड़े हमारे audience को give you a little different flavor about you as a person and some of the things that appeal to you. So maybe the first one we'll say, what are the 5 things you can't do without? And you can also answer it, you can't live without. 5 things, not people. Saying my gratitude prayers. I need that to calm myself when I go to sleep at night and when I get up in the morning. क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि every day is a blessing. Count your blessings. बहुत सारे लोग नींद में ही चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, और अगला सूरज उनको देखने को नहीं मिलता. तो जितनी जिंदगी भगवान ने दी है उसके लिए शुक्रगुजार हूँ. और जब मैं सवेरे उठती हूँ तो मैं वापस थैंक यू बोलती हूँ कि एक नया सूरज, एक नया दिन मिला. सो दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. द सेकंड थिंग दैट आई रियली लव डूइंग इज स्पेंडिंग इनफ टाइम विथ माय फैमिली, क्योंकि दे हैव ऑलवेज बीन माय प्रायोरिटी. तो अगर मुझे कहीं अकेले भेज दिया जाए तो मेरा दिल बहुत उथल पुथल करेगा. सो आई डेफिनेटली नीड देम. उनसे अगर मैं उनके पास नहीं हूँ तो उनसे बात करना चाहूंगी. सो दैट्स डेफिनेटली द सेकंड थिंग. द थर्ड थिंग इज एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म, क्योंकि मैं सोचती हूँ, और मेरे लिए ये काम कर गया, टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकलते हैं. आप मूवमेंट करते हो, वॉकिंग करते हो, या वेट लिफ्टिंग करते हो, या बॉक्सिंग करते हो, या कोई भी तरीके का एक्सरसाइज करते हो विथ माइंडफुलनेस, कि कुछ और सोच के मत करना, ये करना कि आप शरीर के लिए कर रहे हो. वो जब आप करते हो तो शरीर रिस्पॉन्ड्स टू दैट, सो इट हील्स यू. सो दैट इज द थर्ड थिंग दैट आई डू. 2 more things. Well, right now I love working, so I find ways to increase, like I said, कि 2 चीजों में गैप बहुत लंबा नहीं होना चाहिए. So of course important to concentrate on what you want to do, what you want to work. So have those things कि आज दिन में मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो भले ही वो 2 या 3 इम्पोर्टेंट चीज हो, पर कैसे भी करके ये 3 चीज आज अचीव करनी है, ताकि आई एम अ बेटर मी देन येस्टरडे. आज मैंने कुछ और अचीव किया जो मैं कल तक नहीं कर पाई. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट, दैट्स लाइक प्रायोरिटाइजिंग, जो आपको करना है. एंड द फिफ्थ थिंग इज, I think I have to have everything organized and clean. मुझे लगता है कि जितना
कचरा आप देख सकते हो, उतना ही कचरा आपके माइंड में रहता है. तो जब सारी चीजें अपनी अपनी जगह रहती है, तो it's easier to think. So I begin my day like this. Lovely, no, so lovely. Very nice. So self, Beautiful. family, work. You know, there was this Harvard professor who talks about happiness. जी. He says if you can create balance between self, family, work, and of course he adds friends, Yes. right? Is a perfect combination that you should be able to have in your life as ingredients. जैसे Of हम course. खाना पकाते हैं, जी जी. you can have a little of this, little of that. that. थोड़ा भी होगा, but you should be It able to makes balance this. around these. And of course, you know, if you can organize it well, then you're done. So आपका description was absolutely, absolutely perfect. But you talked about exercise and fitness, and many would like to know, what's that one thing in exercise or fitness that everyone should do, or, you know, be very careful about? Anything on that? One exercise that Either it could be an exercise or one thing that should be very important when it comes to fitness. So I think breathing right is very important. क्योंकि each and every cell of your body gets oxygenated and it helps taking out the toxins. So जब भी आप exercise करते हो, तब सही तरीके से श्वास अंदर लेना और सही तरीके से बाहर छोड़ना बहुत जरूरी होता है. So that's what how I begin my day. Is just get on your toes and stretch upward. जब आप श्वास अंदर लेते हो और उतनी ही slowly get on your flat on your feet and bring out the air. आपकी पूरी बॉडी एनर्जाइज होती है. तो बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जहां पर भागना पड़ता है फटाफट से, तो मैं 10 करती हूँ ऐसे, and it just energizes you immediately for you to begin your day. Oh no, perfect. I think it's a great और tip. ये हर उम्र में हर उम्र में हो everybody सकता है. can do it. No, that's a great tip. One thing you've unlearned over these years, unlearned. You're all learning new things, but जी. what have you unlearned? Don't look to others for your validation. आप जब तक दूसरों की ओपिनियंस पे अपनी जिंदगी जीते हो, तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते. So believe in yourself. Very important. And maybe, you know, the last question I'll ask you is this, because you cannot not talk about Maine Pyar Kiya. You know, what is that moment about that movie? What is, or somewhere, something from that stays with you? Like, you know, it always makes you smile, brings back a joy on your face. I think a very, very sweet scene was there where the mother-in-law comes and asks Suman कि मेरे पगले प्रेम की सुमन बनोगी. While that was happening, मेरी जाती जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था. So that is something that I remember very sweetly because हिमालय जी और मैं एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मैं मेरे सासू जी के साथ बहुत क्लोज थी शादी के पहले. और मैं एक्चुअली उनसे बैठ के मैंने ये बात की थी कि उस वक्त, और मैं 36 साल पहले की बात कर रही हूँ, जहाँ पर ये नहीं सोचा जाता था कि अच्छे परिवार की लड़कियां बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती. तो मैंने उनसे कहा था कि अगर आपको या ऐसे लगता है कि आपके परिवार में कभी भी आप लोगों पर उंगली उठ सकती है इस बात को लेकर, तो मैं आज आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके बेटे की जिंदगी से निकल जाऊंगी. एंड दैट वाज फ्रॉम वुमन टू वुमन, क्योंकि मुझे पता है कि आदमी तो ये सबसे उभर सकता है, लेकिन एक परिवार को जोड़ना, समेटना और अच्छे से रखना, ये औरत के हाथ में होता है. एंड आई बिलीव दैट a woman is what makes a house a home. तो जब मैं उनके घर में जा रही थी, तो ये जरूरी था कि मैं उनको ये लगे कि इसके आने से मेरा घर का वातावरण और सुधर जाएगा, ना बिगड़ेगा. We've heard the story and a wonderful conversation around the life of such a wonderful woman. I mean, it's been such a wonderful, you know, conversation. But the last word I will give to Sister Shivani to give one word or a few words about Bhagyashree and her life. Purity. It's her purity of personality.
ये सारी चीजें उस प्योरिटी से निकल रही हैं. एंड इट्स अ पास्ट कर्मा संस्कार शी हैज कैरिड, बट दैट प्योरिटी इज देयर. इसीलिए आज भी प्योरिटी आपको बहुत भरपूर रखती है. इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि भरपूर थी आत्मा, भरी हुई थी, मेहनत नहीं की थी उसके लिए, भरी हुई आई है. दिस शी हैज कम विद इट. एज प्योरिटी रिफ्लेक्ट्स ऑन हर फेस आल्सो. प्योरिटी इज हर संस्कार. Through pure soul. Thank you. Thank you, Bhagyashree. Thank you so much, Thank you, Anti. Sister Shima. Thank you. You too can start or enhance your mindfulness journey using the Think Right app on iOS and Android store. It's got a huge number of daily affirmations, daily journeys, daily meditations that will enable us to hold your hand as you move in this transformative journey of life.